China has been, great. It's going to be a great deal. It's a great deal. We're very happy with it. They're going to take care of their other problem, I hope, quickly. But we're going to be. It's going to be an amazing deal. Okay. Thank you. Great job. Yes, sir. Hello, I'm Sally Parekh from Infosys. We've made tremendous investments in the U.S. in the past 2 years, about $525 million. Good. 24,000 employees in the U.S., 6 new centers in different states. We're really grateful for all the approaches put in President with the changes that are coming, both on taxes and on regulations. We see the growth, frankly, in your economy be a tremendous boost for the technology world. We had a very good discussion earlier today, and I'm grateful for all this. Well, thank you. Great job. I know your company. Great job. And, we now also have it so money can come in. When your money's offshore, you can bring it in. Before it was impossible virtually, both bureaucratically, and the rate was so high that nobody would pay it. So nothing came in. Now we have billions and billions of dollars. Apple's bringing in $350 billion, and they're building plants. I just left one. They just opened one in Texas. I just left, and they're building another one. And a lot of things are happening. Great things. Thank you very much. Please. Thank you. Yes. Great job. I know what you've done. Great job. Thank you. So I want to thank you. Go ahead. Let's go. I was just going to say, get out of here, but everyone wants a question now, huh? There's a young, brilliant businessman. Go ahead. President Trump, thank you for the opportunity. I'm Ritesh. I run Oyo Hotels. It's a young startup. Good. In the last 6 years, we've grown to become a leading hotel chain worldwide. We came into the United States less than a year back. Our aspiration was across the U.S. there are lots of small hotels which can do with better technology, better investments, Sure. run by various communities across the country. In the last 8 months, every day we've opened one hotel in the United States. We now manage over 320 hotels. We Right. invested over $300 million in the U.S. But over the couple of years going forward, we expect to invest another $2 billion in the United States. We brought close to 8,000 jobs. And we're signing a pledge with Ivanka that will bring hundreds of thousands of more jobs to That's fantastic. across Texas, Louisiana, North Dakota, and so on. Is that where you invest, those areas? That's where you put. Across the United States, but these are the states where we are the most. So how many hotels do you have right now then? 313. That's fantastic. That's worldwide over 40,000. That is really great. I actually know of your company. Not such a small company, by the way. Good job. Thank you very much. Please. Yes, okay. Well, we'll do one and one, okay? Go ahead. This one is a big one, right? This is a big guy. This is a big player. Go ahead. I know him very well. I've seen him on enough covers. I should know him, right? Go ahead. How's it going? Thank you, Mr. President. I know that since you became the president, you saved the steel industry in the United States. That's right. And with a big list for the rest of the world, then how to support domestic manufacturing? And this is what we expect the other countries to learn. And they should support domestic manufacturing, like China. They support domestic manufacturing to downstream in the world. So we have to address the China's overcapacity issue, but I don't think what you have done for the state industry, what you have done for the tax reform, what you have done for the regulations. I've never seen the extent of ease of doing the business what we experience in the United States anywhere else in the world. So I must congratulate you for creating an ease of business ecosystem. Yeah. And that is what you have brought to the country and that is very important. As you know, 3 years ago, it was just the opposite. It was one of the worst countries to do business in. You couldn't get approvals. You couldn't get anything done. You were sued on for environmental reasons, not because of the environment, just because it was a way of stopping a project that would produce jobs. And I'm a big believer in the environment, and I want to take care of the environment, but they were just using the laws, and we don't let that happen anymore. But if it's something that is wrong, you know better than anybody, we stop them from doing it. But you've done an incredible job. And
The steel industry was dead in our country, and there are certain industries you can do without, to be honest with you. There are certain industries, we can name a lot of them, but steel you need from a military, and aluminum you need. You got to have the aluminum. But steel you need probably more than anything else. You have to have it. And the job you've done is incredible. Biggest in the world by far. The job you've done is incredible. We are going to announce about $1 billion investment in Alabama Street. Good. That's a great place. Invested Farm and Dairy Foundation. Good. Well, you let me know. I'll be there for the groundbreaking. No, that's a great. I know you're I know you're looking at Alabama, right? I know. I had heard that. That's great. That's a big plant, and that's going to be the super efficient, super modern. That's going to be a showcase, I hear. I know that you always know more than I do about manufacturing. Well, no, but people know about that. That's a great thing for Alabama, and it's an incredible place to invest. One last question to you. During your last campaign, you had almost $1 trillion of infrastructure bill. So I think that you can use this $1 trillion infrastructure bill for the revival of tomorrow during your campaign. I think that will further boost the economic activity. Well, we are doing things. One of the things we're doing, we're going to be announcing another tax cut in not so long a period of time, largely for middle-income people, because, we gave them a good tax cut, but we're going to give them a fairly substantial cut. And that gives a lot of money to the consumer. One of the reasons we're doing well and other countries are not doing well, China's having a hard time. They're all really, not too many are doing well. We're doing better than anybody in the world by far, is because our consumer is rich now because of what we've done with a lot of things, jobs, but also tax cuts. They have money, and other consumers don't have money. So that's great. It's an honor to meet you again, and it was good seeing you there. And I look forward to seeing that plant go up, but I think you're going to probably be doing numerous plants in the United States. Thank you, Mr. President. One more comment that I have United Steel Workers Union, which used to be Democrats. Right, And after your tax reform, they started receiving bigger checks. right, So now they've all become Republicans. right. People can feel the benefit of your presidency. You gave him the bonus. You gave him a piece of the cut, and the rest went into investment. No, it's a great thing. Thank you very much. That's beautiful. Thank you. Okay, final question. Go ahead. No. Good. We've been in the U.S. for 35 years. Yeah. We've made about 25 investments, approximately about $5 billion. Last year we invested $4 billion. Good. We're in the agriculture sector. We also do all our global biotech research in the U.S. in agriculture biotech. And I think we're looking forward. The farmers and the agriculture sector really suffered last year. And I think there's a lot of excitement around that. Yeah, there is. I think that is going to help us grow our business, and that's what's. Well, they were targeted and I'm not blaming China for that, because they want to try and win something, and they were targeted, and I made up the difference, as you know, with the tariffs that came from China. So they got targeted from China, and then I took money from China and gave it to the farmers. And frankly, they didn't want it. They just want a level playing field. They're incredible people. But they did well, but now they're really doing well, because you're seeing the numbers coming out, and it's going to be something very special. Not only that, we have $40 billion coming in from Japan. We have a tremendous amount coming in from the new trade deal that we made with South Korea. And then Canada and Mexico are going to be, the deal is fantastic for our farmer. That's right. I mean, that's right, in the truest sense. And you have a good new head of the World Bank, too. He's one of our people. Oh, yeah, sure. Well, that definitely. I thought you said the World Bank, that's right. But that also. Well, listen, I want to thank you all. Congratulations on your success. We hope you come to the United States, invest more billions, because I view it not as billions, I view it as jobs. And we have great people, and we have the greatest country in the world, in my book. And by the way, India, this has been an honor to be here, and you have a very...
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े कारोबारियों से मुलाकात करते उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर आने पर खुशी महसूस कर रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि खुशी है कि ट्रंप अहले खाना के साथ हिंदुस्तान आए। 8 महीने में ट्रंप के साथ 5वीं मुलाकात है और हिंद अमेरिका ताल्लुकात नई बुलंदी पर है। वहीं ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान का दौरा मेरे लिए बेहद खास है। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान की आवाम से मिलकर बहुत खुश हूं और ये दौरा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। 5 बजे के करीब दोनों की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस होगी। हिंदुस्तानी दौरे पर आई अमेरिका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा किया। मेलानिया ट्रंप दिल्ली के नानकपुरा में सर्वोदय स्कूल पहुंची थी, जहां पर मेलानिया का इस्तकबाल तिलक और आरती के साथ किया गया। मेलानिया ने स्कूल में बच्चों और असातिज़ा के साथ बातचीत की। साथ ही स्कूल के बच्चों ने मेलानिया के इस्तकबाल के लिए स्कूल में प्रोग्राम भी मुनक्किद किया था, जहां पर बच्चों ने कई तरह के प्रोग्राम पेश किए। मेलानिया ने स्कूल के बच्चों से खिताब भी किया। और अब नजर दिल्ली में हो रहे तशद्दुद की। दिल्ली में हालात कशीदा हैं। आज भी शुमाल मशरक़ी दिल्ली के कई इलाकों से तशद्दुद की खबरें सामने आई हैं। ब्रह्मपुरी से भी गोली चलने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 में फायरिंग हुई है। जराये के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि 2 लोगों को गोली लगी है। अलबत्ता पुलिस ने गोली लगने की तस्दीक नहीं की है। वहीं इसके बाद कबीर नगर और मौजपुर में भी पथराव की वारदात पेश आई है। यहाँ भी शहरी तरमीमी कानून की हिमायत और मुखालफत में बैठे लोगों के दरमियान झड़प हुई। दिल्ली में तशद्दुद की इन वारदातों में अब तक 8 अफराद की हलाकत हो गई है, जबकि करीब 50 अफराद के जख्मी होने की खबर है। वहीं भजनपुरा इलाके में आज भी तशद्दुद की वारदात पेश आई है। यहाँ आज भी 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि भजनपुरा में कल भी तशद्दुद की वारदात पेश आई थी, जिसके बाद इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया गया था। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है। कई पेट्रोल पंप की तबाहकुन तस्वीरें हैं, तो कहीं गाड़ियाँ जली हुई हैं। तशद्दुद के दौरान कई शोरूम्स में आग लगा दी गई। इलाके में नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती। विधायक और सभी मंत्रीगण गांधी जी की समाधि पे आए हुए थे और गांधी जी जो है वो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे, तो उनसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि दिल्ली में शांति फिर से बहाल हो और दिल्ली के लोगों की तरक्की हो। आपकी अमित शाह जी से भी आज मीटिंग हुई, आपने भी अपने कुछ कंसर्न्स रखे होंगे, आपको लगता है वो सब रिजॉल्व हुए और क्या ऐसे कंसर्न्स थे जो आपको लगा कि इसके उसमें सभी पार्टीज के लोग आए थे और सभी पार्टी के लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सब लोग, इस वक्त माहौल ये है कि सब लोगों को, सभी पार्टियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को मिलके दिल्ली में शांति बहाल करने की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। केजरीवाल जिस तरह से तशद्दुद दिल्ली में बरपा है उसको लेकर पहुंचे हुए थे पार्टी लीडरान के हमरा। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें उन्हें यकीनदानी दिलाई गई कि जल्द से जल्द हालात पर काबू पाया जाए। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपना कंसर्न रखा अमित शाह के सामने, मुल्क के वजीर दाखिला के सामने, कि पार्टी लीडरशिप से और पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर दिल्ली में अमन शांति के लिए पार्टी अपने अपने तरीके से काम करना चाहती है और काम करना चाहिए। फिलहाल जाफराबाद और सीलमपुर रोड पर किस तरह के हालात हैं, हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इसका जायजा लिया। इस वक्त हम दिल्ली के जाफराबाद सीलमपुर रोड पे हैं। जो जाफराबाद ये पूरा रोड है, आप देख सकते हैं पूरा रोड पे यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर लगातार आप देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर आवाजाही जो है वो बंद है, आमद रफ्त लोग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। लेकिन इस सब के बीच में हमारे पास एक यहाँ के लोकल बंदे हैं जो वहीं से आ रहे हैं। भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या देखा? मेरा घर बिल्कुल मौजपुर के अंदर है, जहाँ कल पथराव हुआ है।
वहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। कभी इतने दिन से धरना चल रहा है, कोई भी किसी ने भी कोई आगजनी पत्थरबाजी नहीं करी। उधर से समर्थन में कपिल मिश्रा अपने 500 लोगों को लेकर आता है और कहता है अगर 2 दिन के अंदर के धरना नहीं हटा तो यहाँ पर हम, अगर डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक के धरना नहीं हटा तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल होएगा दिल्ली के अंदर। ये उन्होंने पहले कहा था। अभी क्या पोजीशन है? अभी ये पोजीशन है, अभी वहाँ पर वो नारे लगा रहे हैं, उधर की साइड में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये आपके लगा रहे हैं मौजपुर चौक पे रेड लाइट के ऊपर, और इधर की तरफ जो है इधर सिर्फ प्रोटेस्टर है जो कि किसी तरह का नारा नहीं लगा रहे, सिर्फ अपने प्रोटेस्ट को लेकर नारा लगा रहे हैं। कोई नारे तक भी अल्लाह अकबर नहीं कर रहा, किसी तरह का मुस्लिम नारा नहीं लग रहा। वहाँ पर वो नारा लगा रहे हैं कि जैसे कि ये जो राइट है कि ये 2 पक्षों के बीच हिंदू मुस्लिम हो गया हो, जबकि ये तो एनआरसी का मुद्दा है, इस पर तो हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ इन्होंने मजार के अंदर आग लगा दी, मस्जिद में आग लगा दी, किसी मुसलमान ने किसी मंदिर में कुछ नहीं करा, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अपने नागरिकता को लेकर के सड़क पर उतरा हुआ है, उसे हिंदू मुस्लिम नहीं करनी। तो यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो अपना रोल पूरे तौर से निभा रही है, और ये बता रही है कि आप लोग किसी तरीके से किसी अफवाह में ना आए, किसी चीज़ में ना आए, अमनो अमान जो है बना कर रखें। तो तमाम जो पोजीशन है वो ये सीलमपुर जाफराबाद का ये रोड है, इस रोड पर पूरी तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं यहाँ, क्योंकि आगे के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। कई मीडिया वालों को चोट पहुँचाने की भी खबरें इस तरह से यहाँ पर आई हैं, और यही वजह है कि मीडिया के लोग आगे जो भी गए हुए थे वो भी लगभग यहाँ पर वापस आ चुके हैं। कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली के मुतासर इलाके के लोगों का कहना है कि अवाम पुरअमन रहना चाहते हैं, लीडरान उनको तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महीनों से उनका एहतजाज जारी है, पर कपिल मिश्रा के बयान के बाद हालात खराब हुए हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है, मगर कुछ लोग अभी भी लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। ये वही सड़क है जहाँ पर बीते 3 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। इनमें महिलाओं में छोटे बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और तमाम लोग यहाँ पर लगातार पूरी रात काट रहे हैं। मगर आसपास के तमाम इलाकों की बात करें, बाबरपुर की बात करें, मौजपुर की बात करें, भजनपुरा की बात करें, तो इन तमाम इलाकों में तनावपूर्ण माहौल है। वहाँ पे हिंसा की खबरें आ रही हैं, काफ़ी लोग इसमें मारे भी गए हैं और कुछ लोग हताहत हैं। उनका आसपास के स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। मगर इस तरह की हिंसा का साफ तौर पे ये लोग भी यहाँ के स्थानीय वासी हैं जो साफ तौर पे निंदा करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, जो कि दो समुदाय को आपस में भड़काने की बात करते हैं। साफ तौर पे जाफराबाद के निवासी मेरे साथ मौजूद हैं और इसमें युद्ध भी है। ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटना जो हो रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए और ये इसकी निंदा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह की बात है कि एक कार आ रही थी और जो है वहाँ के विद्रोहियों ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है। मॉब लिंचिंग हो रही है, उनकी कारें फोड़ी गई, उन पर अटैक करा गया और पुलिस वहीं पर साथ में खड़ी हुई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही इस पर। क्या पुलिस सो रही है? कब उठेगी, कब एक्शन लेगी? आप कल का मंजर देख लीजिए, पेट्रोल पंप पे क्या करा है इन्होंने, और जगह जगह कितने मर्डर हो चुके हैं, कोई एक्शन ले रही। खुली छूट दे रखी है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। सवाल ये भी तो है कि वो भीड़ में छुपे हुए वो लोग कौन हैं जो इस तरह की घटना करके निकल जाते हैं और जो भीड़ है वो बदनाम हो जाती है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। यहाँ पर आज से पहले 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, कोई हिंसा नहीं हुई। हिंसा वो हुई है जब से कपिल मिश्रा ने ये कहा जी इनको 3 दिन के अंदर हटाओ, नहीं तो हम हटाते हैं इन्हें। अगर कपिल मिश्रा इतना बड़ा नेता है तो खुद आके लड़ना, क्यों आपस में लड़वा रहा है? पब्लिक नहीं चाहती लड़ना, लेकिन ये जो नेता लोग हैं यही लड़वाना चाहते हैं। और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। अस्पताल पहुंचे हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल तशद्दुद में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको अरविंद केजरीवाल का इजहार ख्याल सुनाया था जब वो राजघाट पहुंचे हुए थे बाबा कौम की समाधि पर हाजिरी देने के लिए, और वहां पर जाने का मकसद उनका ये था कि बापू अमन शांति के पुजारी हैं, लिहाजा जिस तरह से दिल्ली में तशद्दुद बरपा है वो चाहते हैं कि अमन शांति कायम हो, इसीलिए वहाँ पे वो हाजिरी देने आए हैं। और इस वक्त दिल्ली के एक अस्पताल में मौजूद हैं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल। तशद्दुद में जख्मी अफराद का हाल चाल जानने के लिए, हाल चाल दरियाफ्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल अस्पताल पहुंचे हुए हैं और इस वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके हमरा हैं। तो जख्मियों से उनका हाल चाल जानने के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल अस्पताल पहुंचे हुए हैं। इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जीटीपी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर मरीजों को इलाज मुआलजा के लिए भर्ती किया गया है और इसी अस्पताल
में मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम हैं दिल्ली के, और साथ ही साथ उनके हमरा मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जख्मी शख्स से हाल दरियाफ्त कर रहे हैं वजीर आला अरविंद केजरीवाल। एक एक करके सभी मरीजों से हाल जानने के लिए, उनकी सेहत के ताल्लुक से दरियाफ्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल डीटीपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं दिल्ली के, जहां पर उनके हमरा मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों में तशद्दुद बरपा हुआ है, और कुछ देर पहले की खबर ये है कि भजनपुरा और साथ ही साथ दूसरे इलाकों में तशद्दुद बरपा हुआ है और हालात कशीदा बने हुए हैं। 2 से 3 दिनों से तकरीबन दिल्ली में हालात कशीदा हैं। हालांकि इससे पहले की अगर बात करें तो पूरे हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की थी और दिल्ली के हवाले से उन्होंने अपना कंसर्न जताया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर हमें अमन शांति के लिए काम करना होगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अस्पताल में मौजूद हैं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, जो ऐनी शाहिद से बातचीत कर रहे हैं कि कब और कैसे ये वाक़या हुआ था। ऐनी शाहिद की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कैसे तशद्दुद के निशाने पर तमाम अफराद आए जिन्हें अस्पताल में इलाज मुआलजा के लिए भर्ती कराया गया है। तो मौजपुर और जाफराबाद और आसपास के कई इलाकों में तशद्दुद की वारदात के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने अर्जी दाखिल की है और कोर्ट से मुतालबा किया है कि मामले की आज़ादाना तहकीक की जाए। अर्जी में यह भी मुतालबा किया गया है कि तशद्दुद में हलाक शुदगान के अहल खाना को मुआवजा भी दिया जाए। वहीं अर्जी में यह भी मुतालबा किया गया कि जिन सियासी लीडरों ने गलत बयानी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। एक बार फिर से आपको सीधी तौर पर तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली से ही, जहां पर हालात कशीदा हैं और पुरतशद्दुद माहौल का जो निशाना बने जख्मी अफराद, उनके हाल चाल को दरियाफ्त करने के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल अस्पताल पहुंचे हैं और एक एक करके मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका हाल चाल दरियाफ्त कर रहे हैं। जख्मी फर्द के पैर में चोट लगी, जिसे आप देख सकते हैं। 50 से ज्यादा अफराद कहा जा रहा है कि इस तशद्दुद में जख्मी हुए हैं। और ये इस वक्त की ताज़ा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली में 3 दिनों से हालात कशीदा हैं, पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और ये तमाम जो जख्मी जिनसे मुलाकात करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, ये आज हुए हमले में जख्मी हुए हैं, आज हुए पुरतशद्दुद हमले का निशाना बने हैं, जिनका हाल चाल जानने के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं। खातून क्या कुछ कह रही सुन लेते हैं। और वही गोलियां चला रहे हैं वहाँ पे, तो कोई पुलिस की कोई वो नहीं है। वहाँ पे साथ है, मैं पीछे मुड़े थे, मैं पीछे कौन सी कॉलोनी, गली नंबर 19 विजय पार्क मौजपुर में। बाबा जी तो वो भाई हम सारे 8-10 लोग के गोलियां, एक तो वहाँ पर 10 को खत्म हो गया। को बताते अरविंद केजरीवाल डॉक्टरों से भी मिल रहे हैं और इस हवाले से वो दरियाफ्त कर रहे हैं कि कैसी कंडीशन जख्मियों की है, मरीजों की है। कुछ देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे जिसमें एक खातून जो वाक़या हुआ था उसे बताते बताते गमज़दा हो गई और उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। तो जख्मियों से हाल तो दरियाफ्त कर रहे हैं, साथ ही साथ जख्मियों के साथ उनके एक अटेंडर भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों देखा हाल वज़ीर आला के सामने पेश किया। और इस वक्त मुलाकात करने के बाद फर्दन जख्मियों से बातचीत करने के बाद
वजीर आला अरविंद केजरीवाल अस्पताल में मौजूद हैं और डॉक्टरों से भी वो बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। हाँ, we had बस में कर लेते हैं। We have 2 faculty on duty अरविंद केजरीवाल डॉक्टरों से बात करते हुए ये सवाल कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई वसाइल की कमी इस पर उनके पास क्या कुछ सहूलतें मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने के बाद बाहर अस्पताल से पहले दिल्ली के वजीर अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे थे। बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने हाजिरी दी थी। उन्होंने कहा था, मैं इसलिए यहाँ पर रुख करते हुए आया हूँ कि बापू अहिंसा के पुजारी हैं और दिल्ली में जो हिंसा हो रही है वो बंद होनी चाहिए। इससे पहले राजघाट पर हाजिरी देने से पहले हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली के हालात पर अपनी फिक्र जताई थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर हमें काम करना होगा, सभी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा। उधर अगर बात दिल्ली हाईकोर्ट की कर लें तो दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे तशद्दुद को लेकर अर्जी भी दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई भी हुई। वहीं अरविंद केजरीवाल इस वक्त के मुताबिक बता दें आपको कि दिल्ली के एक अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और मरीजों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हाल चाल जाना, यानी शाहिदों से भी उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद डॉक्टरों से वसाइल के ताल्लुक से भी सवाल किया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब ये उस वक्त की तस्वीरें जब तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसके बाद 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे और तकरीबन 7 लोगों की अमवात हो चुकी है तशद्दुद में। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध के रोज़ शुमाल मशरक़ी दिल्ली में सीए के मामले में एफआईआर और तशद्दुद में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत पर इत्तफाक किया। दायर की गई दरख्वास्त में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश साहब सिंह के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली में होने वाले झड़पों से मुतालिक ऐसी ही एक अर्जदाश पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होगी। दिल्ली तशद्दुद के पेश नज़र अमित शाह की सदारत में दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में दिल्ली के वजीर आला, एक बार फिर से आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल भी मौजूद रहे। मीटिंग में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और दीगर कई आला अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग में दिल्ली में हालात बेहतर बनाने पर तबादले ख्याल हुआ। मीटिंग में इस बात पर भी गौर किया गया कि सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए जाएं और फसादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीटिंग में इस बात पर भी तबादले ख्याल किया गया कि सियासी लीडरों की गलत बयानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हिंसा रुकनी चाहिए, हिंसा से किसी का भी भला नहीं हो रहा है। एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई और 6 सिविलियंस की मौत हुई, वो सब लोग किसी न किसी के घर के लोग थे और हमारे अपने दिल्ली के लोग थे। तो जितनी हिंसा बढ़ेगी उसका किसी को भी फायदा नहीं है। अभी गृह मंत्री जी ने सभी पार्टियों की और ऑफिसर्स की, कंसर्न्ड ऑफिसर्स की, पुलिस की मीटिंग बुलाई थी जिसमें एलजी साहब भी मौजूद थे, बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आम आदमी पार्टी के थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, पुलिस कमिश्नर थे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सकारात्मक मीटिंग रही जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबने ये तय किया कि ये हमारी अपनी सबकी दिल्ली का मामला है और सभी पार्टियां मिलके और सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके दिल्ली में वापस शांति बहाल करने के लिए जो भी संभव प्रयास है हम सब संभव प्रयास करेंगे। सभी अथॉरिटीज़ ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी पुलिस की कोई कमी नहीं होने देंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलके करेंगे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस की नीचे कमी नजर आ रही थी, तो वो आश्वासन दिया है कि कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी पुलिस की वो मुहैया कराएंगे और सब लोग इसके ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के सब लोग अपनी दिल्ली में शांति बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे। ये बात मैंने मीटिंग में भी उठाई इस बात को कि जिस तरह से भड़काऊ भाषण आए हैं, जब तक उनके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा तब तक इस सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह थी, एचएम साहब ने भी इस बात को माना कि हमने अपने जो भी पॉलिटिकल पार्टी से वो एफिलेटेड हैं उनको भी कहा गया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि उनके ऊपर अंकुश लगाएं, वरना ये अगर भड़काऊ भाषण नहीं देते, भड़काऊ बातें नहीं करते तो आज मैं समझता हूँ कि दिल्ली की ये सिचुएशन नहीं होती। हिंसा बढ़ती कैसे है?
कि भड़काऊ भाषणों से। इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि दिल्ली के अंदर हिंसा को रोका जाए। और जो बात जो मैंने पहले कही है कि किस तरह से ये भड़काऊ भाषण दिए गए जिसकी वजह से हिंसा भड़की, एचएम साहब ने आश्वासन दिया कि उसके ऊपर भी पूरा अंकुश लगेगा। उनके बिना नाम लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। छोटे से